आज मैं आपको जो टीच करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट सब्जेक्ट है मेरा, नेटवर्क एनालिसिस। This is not the first subject for me. I think it is a very important subject for every engineer from electronics, electrical and EC department. It is a fundamental subject for all the branches. It is fundamental subject for all the branches which are related to electronics, electrical, instrumentations and all. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो डील करने जा रहा हूँ वो ओम्स लॉ। तो इस पूरे चैप्टर का जो सबसे फंडामेंटल सब्जेक्ट है, फंडामेंटल टॉपिक है वो ओम्स लॉ। यहाँ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओके, व्हाट द ओम्स लॉ मीनिंग? तो एक्चुअल it is a law which states that the current flowing through any conductor is proportional to the voltage across the conductor. So what is the meaning? Again I am saying this statement. आप statement को सुनिए अच्छे से कि the current flowing through any conductor is proportional to voltage drop across this conductor. Or alternatively I can say the amount of voltage drop across any conductor is proportional to the current flowing through the conductor. The amount of voltage drop amount of voltage drop voltage drop across any conductor is proportional to the current flowing across the conductor. Current flowing across the conductor. तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि जो भी कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है वो प्रोपोर्शनल है उसके अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट से। तो इसके लिए मैं आपको भी कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा। V is proportional to I. V is proportional to I. Suppose I have a conductor. Suppose I have a conductor. Yes, कुछ लोग सोच सकते हैं सर ये कंडक्टर कैसे, ये तो रजिस्टर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया, मैं डेफिनेशन में कंडक्टर बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैन से अगेन अंडरस्टैंड, रजिस्टर इज ऑल्सो अ कंडक्टर which has some finite amount of resistance, or I can say each conductor is a resistance or each resistance is a conductor, but some finite amount of resistance is considered. So अगर मैं कहूँ कि इसके अक्रॉस ड्रॉप, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस अभी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो प्रोपोर्शनल है इस फ्लो होने वाले करंट के। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाले करंट के। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो टर्म कांस्टेंट जो है ये है R। और इस कांस्टेंट टर्म को ही हम
रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस कांस्टेंट टर्म इज रेजिस्टेंस। तो fundamentally we have understood that this proportionality constant which is falling inside the Ohm's law is termed as resistance। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन है, यही Ohm's law है, इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस इज गोइंग टू यूज इन एंटायर नेटवर्क एनालिसिस। तो ये पूरे ही नेटवर्क एनालिसिस में यूज होने जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं रिमार्क दूँ तो Ohm's law इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट। क्या बोल सकता हूँ मैं? एक मैं पॉइंट रखता हूँ, माई पॉइंट इज वन पॉइंट, Ohm's law, this is the conclusion, Ohm's law is the linear relationship. Ohm's law is the linear relationship between voltage and current. Voltage and current. अभी आपको पता चलेगा, you will understand what I mean to say. Ohm's law is the linear relationship between voltage and current. How it is the relation? Linear. My definition, or can say remark, is Ohm's law is a linear relationship between voltage and current, and how I will fulfill it, so you have to understand. Simply I will say that V equal to IR, so RI. If I compare it with Y equal to mx plus c, which is the empirical relation of a straight line, or can say empirical formula of a straight line. So आप सभी जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, जहाँ पर m जो है स्लोप होता है, और c जो है इंटरसेप्ट होता है। अगर मैं इस वाले लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ तो इसे मैं ऐसा बोलता हूँ, सिंपली क्या बोलता हूँ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, और ये कोई एक लाइन है, ये देखो, ठीक है। तो दिस इज द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द लाइन yx इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m is slope and this value which is intercepted with y-axis, this is the value c. Here the c is negative, of course, yes, c is negative, and here c is positive, ठीक है, ये x है, ये y है, again the slope is m, but here c, the value cut on y-axis. तो जो वैल्यू लाइन ये वाई एक्सिस पे कट कर सकती है उसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू सी है, बट यहाँ सी जो है पॉजिटिव है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि लाइन का था, और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये हाँ, अब देखिए हमने जो ओम्स लॉ का रिलेशन लिखा है, द रिलेशन वी हैव रिटन फॉर ओम्स लॉ इज सिंपली द इक्विवेलेंट ऑफ द रिलेशन ऑफ वाई इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर from V equal to RI. This is your M, but C is equal to 0. There is no intercept. इसका मतलब कि V equal to IR एक लीनियर रिलेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है।
अगर मैं इस एक्सिस पे करंट ड्रॉ कर दूं और इस एक्सिस पे वोल्टेज ड्रॉ कर दूं, जो कि y की जगह वोल्टेज है, x की जगह करंट है, तो ये जो v/r है, ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू तो कोई नहीं है। इंटरसेप्ट की वैल्यू ना होना मतलब y एक्सिस को 0 पे कट करना, और ये आपका स्लोप जो है, ये स्लोप r है, ये स्लोप r है। ठीक, तो यहाँ से मैं समझा कि किस तरह से ये वोल्टेज लॉ ऐसा बोल सकता हूँ। और अगर जो ज़्यादातर आप देखेंगे, मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे जिसमें हमारा करंट जो है, अगर मैं y एक्सिस पे रखता हूँ, अगर करंट y एक्सिस पे रखता हूँ, अगर करंट y एक्सिस पे रखता हूँ और वोल्टेज को z एक्सिस पे, सॉरी वोल्टेज को x एक्सिस पे, तब भी ये रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप भी फॉलो होगी। और यहाँ पर जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है 1/r। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ कि I इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/r टाइम्स v। This is again a Ohm's law. This is a different representation of Ohm's law, and there is also a third representation of Ohm's law, which is if we want to find r. अगर हमें r फाइंड करना है तो r हो जाता है v/i। तो तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो वोल्टेज लॉ, सॉरी मैंने बता दिया आपको किस तरह से ओम्स लॉ लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है, एक लाइन को फॉलो करता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ओम्स लॉ को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तीनों ही टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। ओम्स लॉ को तीन तरह से रिप्रेजेंट किया सकता है और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आई कैन रिप्रेजेंट ओम्स लॉ इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, तो फर्स्ट है v इक्वल टू RI या IR। सेकंड है I इक्वल टू V/R। थर्ड है R इक्वल टू, थर्ड है R इक्वल टू V/I। ठीक है, ये तीन नोटेशंस हैं जो ओम्स लॉ के हम यूज करेंगे, ओम्स लॉ। और यहीं से क्वेश्चंस बनेगा। क्वेश्चन जो होगा किसी एक पैरामीटर को देने के बाद दूसरे को या तीसरे को फाइंड करवाएंगे, तो उसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि आपको दो दिए हुए हैं, थर्ड फाइंड कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन सॉल्विंग सिंपली। तो अगर मैं एक नोट रखूं, मैं कुछ नोट डालता हूं, कुछ चीज़ों को मैंने जो कि लिखवाना है यहाँ पे। तो नोट इज components or elements or devices. Note is element slash component device which follows the Ohm's law, which follows the Ohm's law, which follows the Ohm's law, which follows the Ohm's law is termed as linear device. Which follows the Ohm's law has linear IV characteristic. Linear IV characteristics. What is the IV characteristics? Characteristics.
व्हाट इज IV कैरेक्टरिस्टिक? IV कैरेक्टरिस्टिक नथिंग बट अ प्लॉट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। जो प्लॉट मैंने ऊपर ड्रॉ किया था, जो मैंने बताया था कि लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, y = mx + c जैसे लाइन के जैसा बनना है, उसी प्लॉट को हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और IV कैरेक्टरिस्टिक्स का लीनियर होना मतलब x एक्स y एक्स के बीच में एक लाइन होना, कोई कर्व ना होना, ना पैराबोला या डिफरेंट स्ट्रक्चर ना होकर, ना स्क्वायर स्ट्रक्चर होकर, एक सिंपली एक लाइन होना ही यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप होता है। और इसी I और V वाले कर्व के बीच में लीनियर या लाइन का होना ही IV कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है किसी भी ओमिक डिवाइस के लिए। तो एलिमेंट, कंपोनेंट या डिवाइस, इसी में या रेजिस्टेंस हो या कोई और भी कंपोनेंट हो या एलिमेंट हो, which follows the Ohm's law has linear IV characteristics, or this device or component or element is termed as ohmic device या ohmic element. Example resistance. Resistance is a ohmic device. It simply follow the relation V = RI. यहाँ पे आपका लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ बनता है। और डिवाइसेस और एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो द लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉन ओमिक। डिवाइसेस, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, जो भी बोलिएगा, जो इस ओमिक रिलेशन को फॉलो नहीं करते, जो इस लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते, उसे हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका नॉन ओमिक डिवाइस में, आपका एग्जांपल आ जाता है डायोड का, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। डायोड की इन डिटेलिंग हम EDC सब्जेक्ट में करेंगे, डिज़ाइन स्ट्रक्चरिंग, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन हम एनालॉग में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे नॉन ओमिक डिवाइस के रूप में यही डिस्कस कर देता हूँ। डायोड इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस। तो नॉन ओमिक डिवाइस का एग्जाम्पल है आपका डायोड। जो ऊपर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, ये उसकी जगह पे यहाँ पर एग्जाम्पल है डायोड। एक बार नॉन ओमिक IV कैरेक्टरिस्टिक को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। जैसे कि मैंने डायोड के रेजिस्टेंस के केस में IV कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, रेजिस्टेंस के केस में जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी उससे डिफरेंट अगर आपकी नॉन ओमिक डिवाइस होगी, तो यहाँ पर अगर मैं करंट को रखता हूँ और यहाँ वोल्टेज को रखता हूँ, तो वोल्टेज के साथ जो करंट का कुछ वेरिएशन होगा वो कुछ लीनियर ना होगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, मतलब कोई भी अदर स्ट्रक्चर हो सकता है, नॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है कि करंट आपका वेरी तो कर रहा है वोल्टेज के साथ, लेकिन कुछ स्क्वायर फॉर्म ले रहा है, ये स्क्वायर फॉर्म ले रहा है या पैराबोलिक फॉर्म ले रहा है, मतलब ऐसी कोई भी फॉर्म ले रहा है, चाहे वो पैराबोलिक हो या स्क्वायर हो, जो कि नॉन लीनियर हो। मतलब लीनियर मतलब लाइन होता है, लीनियर मतलब यहाँ एक लाइन होता है, ये लाइन ना होगी कोई अदर स्ट्रक्चर है, तो ये नॉन ओमिक रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, कोई छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसमें हम अगर चाहें तो इसे कैसे अप्लाई करना है, कुछ लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो आई विल अप्लाई हियर सिंपली। ओके, नाउ I will apply one question. Suppose I am giving you a structure. Suppose I am giving you a resistance structure. The structure is that this is the structure. It is a 5 ohm. It is a 5 volt across rod और ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है और इसके अक्रॉस 2 एम्पियर करंट है। ये कोई नहीं, चलो ये केवल नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम
find voltage across 5 ohm and resistance R। दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहला है कि वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम एंड सेकंड है रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे मैं एक करंट दे दिया हूँ, यहाँ पे मैं करंट दे दिया हूँ 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम पता है कि अगर एक ब्रांच में ये होता है आपका करंट डिवीज़न रूल कि अगर इस ब्रांच से 2 एम्पियर जा रहा है, ये देखिए 2 एम्पियर आगे बढ़ा ऐसा जा रहा है और इधर 1 एम्पियर चला गया, तो इधर बचा कितना, इधर बचा आपका 1 एम्पियर, सॉरी इधर बचा आपका 1 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में बचा 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर उधर चला गया, अरे यार, ठीक है। तो 1 एम्पियर इधर बचा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वोल्टेज फाइंड करेंगे इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो V इक्वल टू सिंपली फॉलो द रिलेशन RI। ये हो जाएगा, R है आपका 5 ओम और करंट है 2 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। नेक्स्ट R जो फाइंड करना है, ये वाला, ये R जो फाइंड करना है, इसकी वैल्यू सिंपली, ये भी ओम्स लॉ है बट डिफरेंट फॉर्म। ओम्स लॉ V बाई I, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस मैंने 5 दिया है और I इसके अक्रॉस 1 है, तो ये हो गया आपका 5 ओम। एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है, एक चीज़ जो हमेशा याद रखना है वो क्या है, देखिए कि जब आपका एक जो नोटेशन बता दे रहा हूँ, नोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नोटेशन क्या है, वोल्टेज को हम इन जनरली, V को इन जनरली हम वोल्ट में ही मेजर करते हैं, ऐसा ही यूज़ होगा, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे एनालॉग हो या फिर DC हो। डिफरेंस क्या पर आता है, अगर आपका करंट एम्पियर में है, अगर आपका करंट एम्पियर में है और अगर आपका करंट मिली एम्पियर में, डिफरेंस यहाँ पे आता है। अगर करंट एम्पियर में है इम्प्लाइज दैट आपका रेजिस्टेंस ओम्स में आएगा, रेजिस्टेंस ओम्स में आएगा। और अगर आपको करंट मिली एम्पियर में है तो ये इम्प्लाई करेगा कि आपका रेजिस्टेंस किलो ओम में है, क्या, किलो ओम्स, ठीक है। तो आई थिंक किलो ओम्स, तो अभी के लिए आई थिंक ओम्स लॉ के सब्जेक्ट में अगर इतना ही डिस्कशन हो तो ये काफ़ी है, क्योंकि नेक्स्ट में जो डिस्कस करने वाला हूँ चीज़ों को, वो ओम्स लॉ के आगे KVL और KCL पे होंगी। तो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ओम्स लॉ इन 2-3 एस्पेक्ट। सबसे पहले मैंने बताया ओम्स लॉ होता है क्या विद डेफिनेशन, दे आफ्टर आई ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इज द लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर रिलेशन क्या होता है जो कि रेजिस्टेंस फॉलो करता है, डायोड फॉलो नहीं करता, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बताया था। और y इक्वल टू mx प्लस c जो लाइन होती है उसे किस तरह से हमारा ओम्स लॉ फॉलो करता है, तो ओम्स लॉ को मैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I भी बोला था, छोटा मोटा 1-2 डेफिनेशन भी दिया हूँ। आई थिंक इतना ओम्स लॉ के विषय में बोलना अभी के लिए ठीक था। नेक्स्ट जब मैं KVL KCL को डिस्कस करूंगा और इन फ्यूचर जब ओम्स लॉ को मैं यूज़ करूंगा तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से डेप्थ क्लियर हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज इनफ फॉर अबाउट द ओम्स लॉ। यहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाए हैं, देख भी पाए हैं और इसका यूज़ हम इन फ्यूचर देखेंगे। तो आई थिंक इन दिस लेक्चर everything is cleared well and you understood it. So keep watching my videos and be ready with me to understand upcoming concepts like KVL, KCL, voltage division rule, current rule and all the rules I have to discuss in this subject, network analysis. So thank you friends, keep watching, okay, thank you.